So friends, today we are going to discuss previous year question for current electricity. These are 34 years previous years questions, and let's start with the previous years, that is PYQ for NEET and JEE. So the first question is for color code of resistor. In the color code of resistor, what we have given? We have given 4 colors on the resistor here. One is yellow, another is violet, third one is brown, and this one is gold. So BP Roy always write in this way, goes written via gateway and then GSM. So black, brown, red, orange, yellow. So our first color is yellow, so number is 4. Second color is violet, here violet, 7. Yes. So first 2 digits, first 2 lines represent 2 digits of the value of the register color code. Third one is multiplier, this is brown, 10 raised to 2 and 10 raised to 1, sorry, and plus minus tolerance value for gold, that is 5%. Okay, so final answer will be 470 plus minus 5% of 470. So what we have given? We have given 470 watt. 470 watt plus 5%. So C is the right choice. C is the right choice for this question. Okay. Next question, focus here. This is 2020 NEET question. A resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances 10 ohm resistance in the right gap. You already know that this is X, this is R, this is potentiometer, this is meter bridge wire, this is galvanometer, jockey, this is LX, this is LR. And you know it better, X upon R is equal to LX upon LR. This is Wheatstone's condition. So, in the left gap of a meter bridge, balances 10 ohm resistance in the right gap. Right gap में 10 ohm resistance दिया हुआ है और जो length है वो 3:2 दी हुई है. Balances length in the ratio 3:2. In the examination, resistance wire connected in the left gap of a meter bridge balances 10 ohm in the right gap. At a point, balancing point, कौन से point पे balance हो रहा है? जो मीटर ब्रिज वायर को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 3:2. और रेजिस्टेंस वायर की लेंथ दी है, टोटल लेंथ दी है 1.5. देन लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर पूछा है, लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस. ओके, लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन. अब देखो यहाँ पे x upon r is equal to 3/2 है, बराबर है कि नहीं? अरे बात समझ में आई क्या? यहाँ पे x upon 10 is equal to 3/2. So x is equal to 3/2 into 10. 2 5s are 10. So this is 15 ohm. ये तो x की वैल्यू होगी. हमें 15 ohm x की वैल्यू नहीं पूछी है, हमें क्या पूछा है? लेंथ ऑफ 1 ohm of the resistance wire. लेंथ ऑफ 1 ohm of the resistance wire हमें पूछा है. The resistance wire connected. Okay. Length of 1 ohm wire. तो यहाँ पे length of resistance wire कितनी दी है? 1.5 मीटर दी है ना? बराबर है क्या? ये resistance wire है ना यहाँ पर? उसका total resistance कितना है? 15 ohm. और resistance per unit length कितना आएगा? 15 upon 1.5. बराबर है क्या? So 15 upon 15 into 10. और यहाँ पे आंसर है क्या? ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी आंसर नहीं. लेंथ ऑफ, देखो ये क्या है?
15 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसके लिए लेंथ कितनी है 1.5 है, सॉरी ये ऐसा नहीं कर सकते हम, यहाँ पे कैसे करेंगे 15 ओम का टोटल रेजिस्टेंस कितना आया है, सॉरी ये रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना आया है, रेजिस्टेंस वायर का रेजिस्टेंस कितना आया है 15 ओम, बराबर है। उसकी लेंथ कितनी दी है 1.5 मीटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है 15 ओहम ये टोटल रेजिस्टेंस आया रेजिस्टेंस वायर का, उसकी लेंथ कितनी है 1.5। अब हमें पूछा है 1 ओहम रेजिस्टेंस के लिए 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए लेंथ कितनी है, हमें लेंथ निकालनी है। 15 ओम के लिए इतनी लेंथ, तो 1 ओम के लिए 1.5 अपॉन 15 है, बात समझ में। 15 ओम रेजिस्टेंस के लिए 1.5, सो 1 ओम के लिए 1.5 अपॉन 15, सो 15 अपॉन 15 into 10, so answer will be 1 into 10 raised to -1 meter. Is there any option? आपको बात समझ में आई? फोटो निकालने की कोई जरूरत नहीं, वीडियो आपके सामने है, so there is no need. क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। A 40 micrometer capacitor, capacity C equals to 40 microfarad। कैपेसिटी हमें दी हुई है एक कैपेसिटर की जो 40 माइक्रोफैरड है। 40 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻⁶। सो वी हैव कैपेसिटर की कैपेसिटी। अब आगे क्या है, हमें पोटेंशियल दिया हुआ है कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 50 हर्ट्ज। The RMS value of current in the circuit is RMS value of current in the circuit is actually this is a problem of this should be in the electromagnetic induction AC alternating current, उसका एक प्रॉब्लम है, ठीक है देख लेते हैं हम। अब ये क्या है देखो, RMS वैल्यू हमें पूछी है, RMS वैल्यू कैपेसिटी यहाँ पे। अब देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपके लिए नया है, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये उन्होंने इसमें पूछ लिया है या फिर इसमें इंक्लूड कर दिया है पीवाईक्यू में। एक्चुअली दिस शुड बी इन द अल्टरनेटिंग करंट, ये बाद में हमें डिस्कस करना चाहिए एक्चुअली, पर मैं एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे। ये जो कैपेसिटर होता है उसका खुद का भी करंट को अपोजिशन होता है। अपोजिशन ऑफर by capacitor to the flow of current, इसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे कैपेसिटर ने करंट को जो अपोजिशन किया होता है उसे कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको हम XC इससे रिप्रेजेंट करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी एक अपोजिशन है, रेजिस्टेंस है, और इसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा C, ओमेगा यानी 2πf और C यानी कैपेसिटर। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है, F पता है, C पता है, यानी हमें क्या निकाल जा सकता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम निकाल सकते हैं, बराबर है कि नहीं। अब यहाँ पे पोटेंशियल भी दिया है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है XC है ना, सो V अपॉन XC। यहाँ पे ध्यान दो V कितना है 200 और XC यहाँ पे 1/2π, F कितना है 50 और C कितना है 40 into 10⁻⁻⁶। ये 1/XC है, ये XC की वैल्यू है, एक 1/XC करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। पोटेंशियल 200 है, XC की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या करेंगे into 2π into 50 into 40 into 10⁻⁻⁶ को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सारे पहले अंडे निकाल देंगे, बराबर है कि नहीं। 2 2 4 4 4 16, ये 5 बराबर है क्या,
अरे ये दो ले लिया हमने, 2 2 4 4 4 16 और ये 5 और ये अंडे 10⁻4 हो जाएंगे क्या? 2 3 4 ये -6 और क्या है यहाँ पे पाई। सो 80 पाई इंटू 10⁻2 एम्पियर हो गया ये। आंसर क्या है देखते हैं। हाँ ठीक है, आंसर में अभी देखो ध्यान दो इधर अच्छे तरह से एवरीबॉडी। 80 इंटू पाई यानी 3.14 होता है। मैं इसको 3 ले लेता हूँ टेम्पररी, 10⁻2 हाँ 5 का 0 हमने कंसीडर कर लिया ना, 1 2 3 और ये इसका एक 4 तो 10⁻4 लिया ना हमने। और यहाँ पे 2 इंटू 2 4 इंटू 4 16 और ये 5 80 हो गया। पाई की वैल्यू 3.14 की जगह हमने 3 ले ली। सो 240 इंटू 10⁻2 इट मीन्स दैट 2.4 एम्पियर यानी 2.5 आंसर। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपको अभी नहीं भी समझा तो कोई चिंता का विषय नहीं। मैंने क्या बताया, कैपेसिटर यहाँ पे दिया हुआ है। सर्किट में कैपेसिटर का काम है करंट को अपोज करना, तो वो जो अपोजिशन है हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के माध्यम से बताते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? 1/ω/c 1/2π/c। ए फोर्स दिया हुआ है तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हो गया? स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन? हाँ 4 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर फॉर कॉपर? रेजिस्टिविटी नहीं, लीनियर नहीं। बी क्यों? रेजिस्टेंस हमने देखा, तुम्हें पता है क्या? मेटल के लिए रेजिस्टिविटी जो होती है क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने के बाद बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ने के बाद रेजिस्टिविटी बढ़ती है मेटल्स में। मेटल में रेजिस्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिए हुए हैं तो बढ़ने वाला ये ग्राफ है। टेम्परेचर के साथ क्या बढ़ रही है? रेजिस्टिविटी। इज द राइट। क्लियर हो गया? ध्यान दो अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन रीड करो सब लोग, मैं भी रीड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन। अच्छा है, अच्छी तरह से ध्यान दो। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो ये इलेक्ट्रॉन ले लो, ये प्रोटॉन ले लेते हैं। इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होने वाला है। दोनों के चार्जेस सेम हैं पर मासेस दोनों के अलग अलग हैं। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कितना है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है। कूलम्ब्स लॉ बराबर है क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इतना होता है। अब हमें पूछा क्या है? द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पूछा है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे फोर्स यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 9 इंटू 10⁻9, ये E इंटू ई स्क्वायर। इसका चार्ज सेम है ना, और डिस्टेंस दिया हुआ है। When they are 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट, दोनों में डिस्टेंस 1.6 एंगस्ट्रॉम का दिया हुआ है। म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। हमें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन के बाद मास कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रॉन का लेंगे। तो A इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻9
1.6 into 10 raised to minus 19 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 1.6 into 10 raised to minus 10 ब्रैकेट स्क्वायर, ये मीटर में लेना पड़ेगा हमें। और ये जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इधर डिनोमिनेटर में आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10 raised to minus 31 kg। 9.1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझे क्या? तो यहाँ पे ये 9 कैंसिल हो गया, 1.6 का स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, बराबर है क्या? अब 10 raised to 9, ये 10 raised to minus 32, सॉरी 38, 10 raised to minus 38, बराबर है? ये 10 raised to minus 20 और ये 10 raised to minus 31, तो ये हो जाएगा 31, तो ये minus 20 कितना हुआ? minus 29 क्या है? और ये 10 raised to minus 51, so 10 raised to minus 29 plus 51, so ये कितना हो जाएगा? 10 raised to 22 होगा क्या? बराबर है? तो एक्सेलरेशन ऑप्शन में कहीं है क्या? 10 raised to 22 मीटर पर सेकंड, बराबर है? ये क्वेश्चन 2020 कोविड के समय पूछा गया है, कोविड का क्वेश्चन है। 2020 नीट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन व्हेन दे आर 1.6 एंगस्ट्रॉम अपार्ट। अरे भाई कुछ प्रॉब्लम है क्या इसमें? बात पूरी क्लियर हो गई? चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन पढ़ते रहो। क्या है? एक फिगर दी हुई है, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये भी कोविड के समय पूछा गया है, 2020 का ही क्वेश्चन है। इधर ध्यान दो एवरीबॉडी। झोपड़ी बन गई, झोपड़ी का फ्लोर, झोपड़ी का गार्डन, लवर्स पॉइंट। यहाँ से देखो अभी 4 ohm, 5 ohm, sorry 6 ohm, this one is 8 ohm, 4 ohm and 8 ohm। हमें पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B फॉर द गिवन फिगर। ध्यान दो अभी अच्छी तरह से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, सीरीज पैरेलल कौन सा है वो कॉम्बिनेशन देखना है। अब यहाँ से देखो, हमेशा स्टार्ट करो जहाँ से दरवाजा बंद है, जहाँ पे क्लोजिंग है वहीं से शुरुआत करो। यहाँ पे क्लोजिंग है तो ये लाइन ध्यान में, ये एक ही वायर दिखाई दे रही है आपको, तो इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 8 और 4 सीरीज कॉम्बिनेशन में एडिशन होगी, तो ये हो जाएगा 12 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 ओम हो गया। अब उसके साथ ये पैरेलल में दिखाई दे रहा है इजीली 6 ओम, और ये है झोपड़ी बाहर गार्डन में 4 और 8। अब ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में होगा 6 into 12 upon 6 plus 12। पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 R2 upon R1 plus R2 है, so 6 into 12 upon 18, that is 6 3s are 3 4s are, तो ये हो गया 4। so फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट क्या आएगी? ये हो गया गार्डन का 4, अब ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन का 4, और ये हो गया फिर से 8 और 4 12 और 4 फाइनल आंसर। बात समझ में आई? मैं फिर से समझाता हूँ, ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जहाँ से क्लोजिंग है वहीं पे शुरुआत करो, तो ये एक सिंगल वायर दिखाई दे रही है, तो ये 4 और 8 जो है 4 and 8 आर इन सीरीज, तो इनका जो इक्विवेलेंट है सीरीज में एडिशन होती है 4 plus 8 दैट इज 12 ओम हो जाएगा। अब ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस आएगा, ये जो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस आएगा, ये इसको पैरेलल में दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं क्या? 6 ओम को ये पैरेलल में, और उसके बाद ये 4 ओम और ये 8 ओम है। अब ये कैसे आएगा? ये 6 12 6 12, यानी ये इक्विवेलेंट 4 हो गया।
अब ये जो है ये 4 ओम, ये 8 ओम और इसका इक्विवेलेंट 4 ओम, 4 और 4 8 और 8 16 ओम इक्विवेलेंट। क्लियर हो गया क्या? So next question, 2-volt battery, 1 ohm resistance, 4-volt battery, 1 ohm resistance एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इधर 4 ओम होगा। एकदम सिंपल सर्किट है। निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अगले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को है, इसलिए टोटल बैटरी की एडिशन होगी यहाँ पे 4 वोल्ट है ये। तो ये E1 है, ये E2 है, E1 E2 बराबर है क्या? इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। अब टोटल एक ही वायर है तो सीरीज सर्किट है, तो टोटल EMF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टोटल रेजिस्टेंस। EMF बाय ओम्स लॉ, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। हमें करंट पूछा है, टोटल EMF अपॉन R इक्विवेलेंट, टोटल EMF E1 प्लस E2 होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन इसलिए R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह से होगा। So 2 plus 4 upon 1 plus 1 plus 4, that is 6 upon 6. Final answer is 1 ampere. समझे क्या? कितने लोगों ने ऐसे किया था? ये ऐसे ही किया था, E1 plus E2 upon equivalent। तो आंसर आने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बराबर सॉल्व कर लिया। कभी कभी सुमुड़ी में आंसर आ भी जाता है बराबर है कि नहीं? बट इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। ऑलवेज यूज प्रॉपर फॉर्मूले, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन में शायद आंसर आ जाता है, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया तो फिर हमें टेक्निकल पता होना चाहिए कि कैसे किया है। यहाँ पे क्या है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया है, इसलिए E1 प्लस E2 लेंगे और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में है। अरे बात समझ में आई क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन भी करनी चाहिए। जैसे अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, टू सॉलिड कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैव सेम लेंथ। टू सॉलिड कंडक्टर्स हैं आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ एज वेल एज सेम रेजिस्टेंस। मटेरियल सेम है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, सेम लेंथ है, सेम रेजिस्टेंस है। One of them has a circular cross section of area and other has a circular cross section of area। सिर्फ एरिया अलग अलग दिया हुआ है A1 और A2। हमारे पास एक फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, R सेम, L सेम, रो सेम, तो एरिया क्यों अलग रहेगा? एरिया भी सेम रहेगा तो रेशियो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? अगर तीनों ही सेम हैं तो एरिया डिफरेंट होने का कोई मतलब नहीं। अरे बात समझ में आएगी नहीं? अगर ऐसा नहीं आता है तो हम इस तरह से कर सकते हैं, A इज इक्वल टू रो L अपॉन R, सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू रो 1 L1 अपॉन रो 2 L2 डायरेक्टली, और R2 अपॉन R1। यहाँ पे रेजिस्टिविटी सेम, लेंथ सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो आंसर हो गया 1। यही बात समझ में क्लियर हो गया? चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का एक क्वेश्चन है ये भी। फॉर द सर्किट गिवन बिलो, किरचॉफ्स लूप दिया हुआ है, एक सर्किट है, ध्यान दो इधर। सर्किट में दो बैटरीज भी दी हुई है, E1 एंड E2। रेजिस्टेंस दिया हुआ है R2 और यहाँ पे रेजिस्टेंस है R1। इधर एक और बैटरी दी हुई है E1, ये भी E1 ही है क्या? E3 है? E1 ये क्या है? E3। दिस इज गिवन। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे नाम दे दिए है A B C D E और F, A B C D E F, ठीक है।
अब बैटरी E1 से I1 करंट निकला है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ये दो ब्रांचेस में, इधर वाला कौन सा करंट I2 और इधर वाला I3। ध्यान देना अच्छे तरह से, ये I2 इधर से रिटर्न आके I2 और I3 फिर से I1 बन जाएगा, यानी यहाँ पे आने वाला करंट जो है वो I2 है, ये ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं क्या? I2 current will enter in this way and I2 and I3 will become again I1। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अब किरचॉफ्स लूप उन्होंने कौन सा दिया है? BCDEB, BCDEB, BCDEB। अब हमेशा हम B से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। अब जो करंट हमारे लूप के डायरेक्शन में है, हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उसी रास्ते से करंट होगा तो निगेटिव लेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस माइनस I2 R2। हम बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो बैटरी को निगेटिव लेंगे। आगे ये करंट I2 है, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो बैटरी कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और ये करंट हमारे लूप के अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस I3 R1 लेंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस सबके साइन चेंज कर दो, I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1। इज देयर एनी ऑप्शन? Yes. Which is that option? Sir, इसके हमने साइन चेंज कर दिए, इसके साइन चेंज कर दिए माइनस तो ये माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा। सर डी मध्ये माइनस पहला ऑप्शन है ना, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है ना, ऑप्शन ए है ना आंसर यहाँ पे देखो। और ये बात बोला है, अरे बात समझ में आई क्या आपको? इधर ध्यान दो, हमने देखो इधर ध्यान दो, अलग अलग किताबों में इसके अलग अलग रूल हो सकते हैं। हमने क्या रूल फॉलो किया है? जो करंट हमने जो लूप लिया है, जो करंट लूप की डायरेक्शन में होगा वो निगेटिव लेना है, और लूप जब बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव से गुजरेगा, पॉजिटिव से होकर गुजरेगा, whenever direction of loop is from positive to negative terminal of the battery, that EMF is taken as negative। Here again करंट या लूप की डायरेक्शन जो है वो बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है तो वो EMF पॉजिटिव लेंगे। अब यहाँ पे E से B तक क्या हो रहा है? करंट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो हमने ये इक्वेशन बनाया, पर जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से हमें आंसर ये दिखाई दे रहा है, तो इसको सबको हम साइन चेंज करेंगे तो आंसर मिल गया कि नहीं? सो हमने अभी तक 9 MCQ सॉल्व कर लिए हैं मोस्ट प्रोबेबली 5 मिनट के स्पीड से ना, ऑलमोस्ट। अभी 10 नंबर का MCQ, वेरी वेरी IMP MCQ। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। 6 सिमिलर बल्ब्स, ये 2019 के नीट का एक क्वेश्चन है। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद अ DC सोर्स ऑफ EMF E एंड 0 इंटरनल रेजिस्टेंस। एंड बैटरी का रेजिस्टेंस हमें काउंट नहीं करना है यहाँ। The ratio of power consumption by bulbs when all are glowing, सारे शुरू है तब। सेकंड केस में in the situation when 2 from section A and 1 from section B are glowing। ध्यान देना अच्छे तरह से। अब मैं बल्ब की जगह क्या करता हूँ यहाँ पे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि बल्ब की जगह 3 रेजिस्टेंसेस हैं? अरे बल्ब है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस ही है ना, तो ये बल्ब का रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये सेक्शन ए ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में भी 3 रेजिस्टेंसेस हैं। ये सारे सिमिलर बल्ब है तो रेजिस्टेंस भी सेम है, R R R R R एंड R। सेक्शन ए सेक्शन बी बराबर है क्या? इधर 3 बल्ब है, इधर 3 बल्ब है, समझ रहे हैं क्या आप सब लोग? अब पूछा क्या है? रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब्स व्हेन ऑल आर ग्लोइंग। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखो कि ये सारे पैरेलल में तो एक चीज कांस्टेंट है सब में। क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल कांस्टेंट। वेरी गुड। तो सबको जो EMF मिलने वाला है वो कैपिटल E इतना ही मिलेगा। क्यों कैपिटल E इतना मिलेगा? क्योंकि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी 0 है।
अगर बैटरी को इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो सारे रेजिस्टेंसेस को टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलता। समझे क्या? कैपिटल ई बैटरी का ईएमएफ है, एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंसेस है तो हमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करना पड़ेगा। पर जब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है तो हम डायरेक्ट एक्सटर्नल पोटेंशियल भी क्या लेंगे? कैपिटल ई लेंगे। और वो पैरेलल है इसलिए हर रेजिस्टेंस जो भी है पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर बल्ब जो है उसको पोटेंशियल कैसे सप्लाई होगा? सेम होगा। बराबर है कि नहीं? अब हमारे पास पावर का एक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे ई स्क्वायर अपॉन आर लेंगे कि नहीं हम? पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर। अब हमें यहाँ पे पावर निकालने के लिए हमें यहाँ पे ये आर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? आर इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा कि नहीं? अब पहले केस देखते हैं। पहले केस में क्या है? ऑल बल्ब्स आर ग्लोइंग, सारे के सारे बल्ब शुरू है, सारे के सारे बल्ब शुरू। इसका मतलब पहले केस में जो आर इक्विवेलेंट होगा, तीनों बल्ब शुरू है, तो क्या वो R/3 होगा क्या? Whenever n equal resistances are connected in parallel, their equivalent is R/n. Whenever n equivalent resistances are connected in parallel, their equivalent is R/n. And इधर के साइड को ये सेक्शन बी में भी सारे शुरू है, तो इधर भी कितना हो गया? R/3। अब ये R/3 ये दोनों एक्चुअली अगर हम देखें तो फिगर इस तरह से है। पहला एक सेक्शन, दूसरा एक सेक्शन और बीच में कॉम्बिनेशन, यानी पहले पैरेलल में ये पैरेलल कॉम्बिनेशन और दोनों सीरीज में। तो सीरीज में हम क्या करते हैं? तो 2R/3 ये हो गया इक्विवेलेंट पहले केस का। तो पहले केस में पावर क्या होगी? ई स्क्वायर अपॉन इक्विवेलेंट कितना है? 2R/3। सो 3 स्क्वायर अपॉन 2R। बात समझ रहे हैं क्या? 3 स्क्वायर अपॉन 2R ये पहले केस में हो गया। कोई तकलीफ? पहले केस में हम पावर लेते समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे। बैटरी का ईएमएफ तो हर जगह सेम है पैरेलल होने की वजह से। तब R इक्विवेलेंट R/3 दोनों सीरीज में, तो इस तरह से। अब आगे सेकंड केस में थोड़ा अलग नजारा है। क्या नजारा है? इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B आर ग्लोइंग। सेक्शन बी से 3 बल्ब नहीं शुरू है, अभी 2 ही बल्ब शुरू है। सॉरी, सेक्शन ए में 2 बल्ब शुरू है। अगर सेक्शन ए में 2 बल्ब शुरू है तो हम कितने रेजिस्टेंस काउंट करेंगे? सिर्फ 2 ही रेजिस्टेंस काउंट करेंगे वर्किंग के। और सेक्शन बी में एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये R हो गया, ये R, इन दोनों का इक्विवेलेंट R/2। जैसे ये R/3 था तो ये R/2 होगा प्लस R, तो इक्विवेलेंट हो गया 3R/2। बराबर है क्या? तो फिर से सेकंड केस में पावर आएगी E स्क्वायर अपॉन 3R/, ये P1 और ये बात समझ में आई क्या? देखो कोई तकलीफ? ये P1 और P2 हमें पूछा क्या है? द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन, यानी P1/P2 हमें निकालना है। ध्यान दे रहे हैं क्या? तो P1/P2 हम निकालेंगे यहाँ पे। P1/P2 ध्यान दो अच्छे तरह से। सो फाइनल आंसर P1/P2 इज इक्वल टू, P1 है 3 स्क्वायर अपॉन 2R, ये है 3 ई स्क्वायर, समथिंग वेंट रॉन्ग, 2 स्क्वायर अपॉन 3R, ये 2 ऊपर जाएगा ना, 2 स्क्वायर अपॉन 3R बराबर है क्या? ई स्क्वायर कैंसिल, R कैंसिल, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 3 9, ये 2 नीचे आएगा, 9s/4। 2020 का है कि 19 का है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या है, पावर का फॉर्मूला है पोटेंशियल E स्क्वायर अपॉन R, ये हम दे रहे हैं। ये E भी इक्विवेलेंट होगा और R भी इक्विवेलेंट ही होगा,
पर पैरेलल केस में ई इक्विवेलेंट इटसेल्फ क्या होता है, ई होता है। अब आर इक्विवेलेंट जो रहेगा उस पर डिपेंड रहेगा पावर। पहले केस में तीनों बल्ब जो थे वो पैरेलल में थे, तो आर 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 जब तीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो उसका इक्विवेलेंट R/3 होगा। उसको एक सीरीज कॉम्बिनेशन सिमिलर था सेक्शन ए वाला, तो वो भी R/3, तो टोटल हो गया 2R/3। ये पहले केस में डालेंगे। सेकंड केस में सिर्फ दो बल्ब एक्टिव थे, एक सेक्शन ए में और इधर 1 था, तो उस हिसाब से इक्विवेलेंट लेंगे, P1 और P2 का रेशियो लेंगे 9:4। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूज वायर। अब इधर ध्यान दो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। तो फ्यूज वायर एक्ट एज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, ये तो आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट छोटा बच्चा भी इसका आंसर दे देगा कि फ्यूज वायर इज ए सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस। पर क्वेश्चन अगर घुमा के आया कि why fuse wire used as a circuit protection device, तो इसका रीजन क्या है? तो fuse wire has lower melting point. Fuse wire has lower melting point. लोअर मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा। जैसे मेल्ट हो जाएगा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं? Why fuse wire is used as a circuit protection device? Because it has lower melting point. It melts easily and circuit breaks. बात समझ में आई? अब अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर और एमीटर का क्वेश्चन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले वोल्ट मीटर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और एमीटर भी डिस्कस कर लेते हैं कंसेप्चुअली। वोल्ट मीटर एंड एमीटर तो हो गया क्या? तो ध्यान, वोल्ट मीटर एंड एमीटर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के दो यूजेस। जब गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एमीटर, और जब वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करेंगे तो उसे बोलेंगे वोल्टमीटर। ये प्रैक्टिकल डिवाइस है, ये पोर्टेबल होता है, हम कहीं भी लेके जा सकते हैं वोल्टमीटर मेजर करने। पर इससे अच्छा एक्यूरेसी वाला पोटेंशियोमीटर होता है, हमने देखा है। पोटेंशियोमीटर इज ए मोर एक्यूरेट डिवाइस देन द वोल्टमीटर, बट वो पोर्टेबल नहीं है, वो लैबोरेटरी वर्क वाला है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत है। तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जब करंट के लिए यूज होगा, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, उसे हम एमीटर कहेंगे। वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करेंगे तब उसे हम वोल्टमीटर कहेंगे। अब सब्जेक्ट क्या है कि गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका रजिस्टर जो है हम वो कैपिटल G मान लेते हैं। ध्यान दो अच्छी तरह से। अब क्वेश्चन ऐसा है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? How will you convert galvanometer into voltmeter? How will you convert galvanometer into ammeter and galvanometer into voltmeter? ध्यान देना चाहिए। galvanometer into क्या? ammeter and galvanometer into क्या? voltmeter। अब हम गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी हमें गैल्वेनोमीटर का उपयोग करंट मेजर करने के लिए करना है, तो हमें क्या करना है? ये जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ये जो गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस G है, इसको हमें छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए यूज करना है तो हमें एक छोटा सा रेजिस्टेंस कैसे जोड़ना है? उसके कॉइल को पैरेलल में जोड़ना है, और वो जो छोटा सा रेजिस्टेंस हम उसको पैरेलल में जोड़ते हैं उसको हम बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब ये हो गया एक्चुअली एमीटर, ये गैल्वेनोमीटर है सिर्फ, इसका मतलब है गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस है।
बात समझ रहे थे? अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये डायरेक्टली हम करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर बहुत बड़ा करंट उसमें घुस जाएगा तो कॉइल ही जल जाएगी, तो डायरेक्टली वो करंट मेजर नहीं कर सकता। तो इसका फिर फायदा क्या है? इसको एमीटर कैसे बनाएंगे करंट मेजर करने के लिए? तो उसको हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? अब ये हो गया एमीटर। एमीटर ये सर्किट का टोटल करंट ही मेजर करके देगा, पर इसके अंदर, इसके बाहर हमें एक्चुअली देखो ये सर्किट है, यहाँ से इतना करंट सर्किट में घुस रहा है एमीटर में, तो एमीटर हमें वही करंट दिखाने वाला है जो आया हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं? एमीटर यानी सिर्फ गैल्वेनोमीटर नहीं, गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल विद शंट रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर इन पैरेलल विद शंट रेजिस्टेंस, इसको हम एमीटर कहेंगे। तो ये हमें टोटल करंट मेजर करके देगा, पर why we are going to connect a small resistance in parallel with galvanometer coil, इसका रीजन देखते हैं। ये जंक्शन है यहाँ पे करंट क्या होगा? डिवाइड होगा। अब इन दोनों में से कौन सा रेजिस्टेंस छोटा है? शंट। ये बहुत छोटा रेजिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में। इसका फायदा क्या होगा? ये रेजिस्टेंस छोटा है तो बहुत ज्यादा करंट उसमें घुस जाएगा। रेजिस्टेंस छोटा है ना, और ये रेजिस्टेंस बहुत छोटा है, तो ये रेजिस्टेंस बड़ा है, ये रेजिस्टेंस बड़ा है, तो यहाँ पे आने वाला जो करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल, वो बहुत छोटा होगा। इसकी वजह से बहुत कम होगा, इसकी वजह से गैल्वेनोमीटर कॉइल प्रोटेक्ट हो जाएगी, वो जलेगी नहीं। क्योंकि अगर ये पूरा के पूरा करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल में एंट्री कर देता तो गैल्वेनोमीटर कॉइल जलने के चांसेस थे। अब क्या हुआ? हमने इस करंट का मैक्सिमम पोर्शन डाइवर्ट कर दिया, बराबर है कि नहीं? तो why we are going to connect shunt resistance so as to protect galvanometer coil from the damage, because shunt resistance में से ज्यादा करंट चला जाएगा, इसको हम IS मान लेते हैं। पर हम अगर इस टोटल सर्किट का सोचेंगे तो ये हमें टोटल IG प्लस IS यानी क्या दिखाएगा? यानी एमीटर में हमें टोटल करंट दिखाई देगा, पर अंदर क्या चल रहा है ये मामला। अंदर शंट में से ज्यादा करंट जाएगा, गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाएगा, बाहर फिर से उतना ही करंट आएगा। IG प्लस IS यानी फिर से कितना आएगा? तो एमीटर ने कोई करंट लिया नहीं खुद ने, उसने सिर्फ क्या किया? जो करंट सर्किट में फ्लो हो रहा है वो करंट दिखा दिया, पर वो दिखा कैसे रहा है? एक्चुअली IG प्लस IS के हिसाब से टोटल करंट आया। आपको ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है क्या? How will you convert galvanometer to measure current in the circuit? Galvanometer which is used to measure current in the circuit is called as ammeter. और how will you convert galvanometer into ammeter? तो क्वेश्चन का आंसर एक ही है, by connecting एक छोटा सा रेजिस्टेंस in parallel with galvanometer coil, और वो छोटा सा रेजिस्टेंस उसे हम शंट रेजिस्टेंस कहेंगे। So how will you convert galvanometer into ammeter? By connecting a small shunt resistance in parallel with galvanometer coil। खत्म। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान में, I equals to IG plus IS, ध्यान देना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है? अब ये पैरेलल में है कि नहीं दोनों? सपोज दैट सर्किट V इतना पोटेंशियल सप्लाई कर रही है, सर्किट इज सप्लाइंग V अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कितना रहेगा ये दोनों में? V भी रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये पैरेलल में है तो करंट डिवाइड हुआ, क्या पोटेंशियल डिवाइड होगा? नहीं होगा, पैरेलल में पोटेंशियल नहीं डिवाइड होता, तो दोनों का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब ये वोल्टमीटर में भूल जाइए, फिलहाल हम एमीटर में ध्यान दे रहे हैं। Vg must be equal to Vs ना, potential at galvanometer coil must be equal to potential at shunt coil, ये शंट है भाई। अब यहाँ पे पोटेंशियल जो है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस होगा? अरे भाई यहाँ से Ig इतना करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है? G, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, यही तो पोटेंशियल होता है। अब Vs कितना होगा? Is into, समझ रहे क्या? पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ शंट, बिकॉज दे आर पैरेलल। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, और पोटेंशियल इज द प्रोडक्ट ऑफ Ig एंड G।
करंट एंड रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, करंट एंड रेजिस्टेंस। अब हमें S इज इक्वल टू IG अपॉन IS इंटू G, ये एक इक्वेशन ली है। अब यहाँ पे IG अपॉन, क्या मैं IS को I माइनस IG लिख सकता हूँ क्या? IS कैन बी रिटन एज I माइनस IG। यहाँ पे IG ऊपर गया तो यहाँ पे I में से IG इतना करंट जाएगा ना। ये जो IS है एक्चुअली ये I माइनस IG होगा कि नहीं, इंटू G। तो ये फॉर्मूला है शंट रेजिस्टेंस का कि गैल्वेनोमीटर कॉइल को एमीटर में कन्वर्ट अगर करना है तो कितना शंट जोड़ना पड़ेगा। वो जो छोटा सा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? IG अपॉन I माइनस IG इंटू कैपिटल G। IG यानी करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर कॉइल, I यानी टोटल एमीटर में एमीटर की रेंज करंट मेजर करने की। ये क्लियर हुआ क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एमीटर के लिए, समझे क्या भाई? हाँ, अब ये रेंज ऑफ एमीटर है। अब ऐसा मानते हैं कि सपोज दैट ये जो रेंज ऑफ एमीटर है वो गैल्वेनोमीटर कॉइल की जो रेंज है उससे n टाइम्स है। लेट n IG। एमीटर क्या कर रहा है? एमीटर की रेंज क्या ले रहे हैं हम? गैल्वेनोमीटर जितना टॉलरेट कर सकता है उसके कितने टाइम्स? n टाइम्स हमने ले ली। बात समझ में आई क्या? तो अब S इज इक्वल टू IG अपॉन, ये I की वैल्यू क्या रखेंगे? NIG माइनस IG इंटू G। IG कॉमन निकलेगा यहाँ से, IG कॉमन निकलेगा, IG कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ऊपर क्या रहेगा? G रहेगा और नीचे क्या रहेगा? दिस इज शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड शंट रेजिस्टेंस फॉर एमीटर। G अपॉन n माइनस 1। G क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर और n क्या है? इट इज द रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर दैट इज n टाइम्स दैट ऑफ द रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल। बात समझ में आई कि नहीं? या फिर I अपॉन IG, ये रेशियो भी हो सकता है। क्लियर हुआ क्या? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तो फॉर्मूला ये है। कैसे आया? बात समझ में आई? S इज इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1। क्लियर हो गया? सो हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? ये क्लियर हो गया। अब ये डब्बा जो है ये एमीटर का डब्बा है। तो फिर से एक बार जरा अच्छी तरह से उसको समझा दो, ध्यान समझ गया है क्या? उसको अच्छी तरह से राइट करके समझा दो, कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल हम सिर्फ एमीटर की बात करेंगे, उसके बाद फिर वोल्टमीटर की तरफ जाएंगे। गैल्वेनोमीटर कॉइल है, उसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। ये जो बॉक्स अब बन गया है ये क्या है? हमारा एमीटर है। ये एमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर कॉइल को एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है। एमीटर बन गया। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि एमीटर को सर्किट में जोड़ना कैसे? एमीटर को सर्किट में सीरीज में जोड़ना है या पैरेलल में जोड़ना? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमीटर को बनाने के लिए पहले गैल्वेनोमीटर को छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। एमीटर बन गया, एमीटर बन गया, ये पूरा एमीटर बॉक्स है, उसके अंदर क्या हमें लेना देना नहीं है। अब इस बॉक्स को सर्किट में जोड़ना कैसे है? तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है तो एमीटर को हमेशा सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। कौन बताएगा इसका रीजन? किसी भी सर्किट में अगर हमें करंट मेजर करना है तो हमें एमीटर सीरीज में जोड़ना चाहिए। हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी? करंट डिवाइड हो जाएगा तो एमीटर बराबर रीडिंग कैसे दिखाएगा? उसके पास जितना करंट आएगा उतना ही वो दिखाएगा कि नहीं? तो इसलिए हमें सीरीज में जोड़ना है, क्योंकि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सेम रहता है सर्किट में। इसलिए एमीटर हमेशा सर्किट में कैसा जोड़ेंगे? बराबर। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर एमीटर बनाना है तो पहले गैल्वेनोमीटर को छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ना है। वो बॉक्स एमीटर बन जाने के बाद सर्किट में उसे कैसे जोड़ेंगे? सीरीज में। तो अब इसको सर्किट में हम सीरीज में जोड़ देंगे। आई बात समझ में? सर्किट में सीरीज में जोड़ देंगे। यहाँ से भी इतना पोटेंशियल है, इतना करंट है, ये करंट यहाँ पे आके डिवाइड होगा, ये Ig हो जाएगा, ये I माइनस Ig हो जाएगा, क्योंकि I करंट आया था, Ig इधर चला गया तो इसका सब्ट्रैक्शन इधर आएगा, इसको हमने Is बोल दिया। बराबर है क्या? सर्किट में ये दोनों पैरेलल के इनसाइड Ig into G is equal to Is into S. Potential across galvanometer and potential across shunt is same. अरे भाई समझ रहा है क्या? So S is equal to Ig upon Is into G. Ig upon Is क्या है? I माइनस Ig into G. अब मैंने क्या लिया? रेंज ऑफ एमीटर गैल्वेनोमीटर रेंज से कितनी ले ली? n टाइम्स ले ली। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा G is equal to n माइनस S is equal to G upon n माइनस। क्लियर हो गया क्या? अब ये जो एमीटर है ध्यान में रखना है। एमीटर कैसे बना समझ गया क्या? अगर किसी ने तुम्हें कहा कि एमीटर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एनीबॉडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नजारा? झूमे जो सर्किट, यस 1 upon Ig plus 1 upon Is। 1 upon Ig plus 1 upon Is का क्या लेना देना? मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा हूँ। रेजिस्टेंस 1 upon G plus 1 upon S। यस वेरी गुड। 1 upon G plus 1 upon S। 1 upon R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 upon S plus 1 upon G। और इसको हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? R1 R2 upon R1 plus R2। सो एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला है Sg upon S plus G। समझ में आने के बाद अरे क्लियर हुआ क्या? ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया क्या? एमीटर मैडम जी आपको नहीं समझा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है उसका फॉर्मूला ध्यान में आ गया। अगर हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो शंट रेजिस्टेंस कितना जोड़ना पड़ेगा उसके फॉर्मूले क्लियर हो गए। बराबर है कि नहीं? और ये एक फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसी से सारे फॉर्मूले बने। क्लियर हो गया क्या? कोई तकलीफ? अब हम जाते हैं वोल्टमीटर की तरफ। हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर? गैल्वेनोमीटर कॉइल जो है वो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें भी यूज करनी है। अगर हमको करंट मेजर यूज करने के लिए यूज करना है तो हम उसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे। अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है तो एक बड़ा सा रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देंगे। ध्यान दो अच्छी तरह से, उल्टा है पूरा। How will you convert galvanometer into voltmeter by connecting a high resistance in series with galvanometer? वहाँ पे एमीटर के लिए हमने एक छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा था। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ क्या? यहाँ पे छोटा सा रेजिस्टेंस पैरेलल में इसलिए जोड़ा था क्योंकि गैल्वेनोमीटर कॉइल डैमेज नहीं होनी चाहिए और पोटेंशियल सेम होना चाहिए। समझे क्या? अब वोल्टेज मेजर करने के लिए हमें क्या करना है? गैल्वेनोमीटर कॉइल जो है उसको एक लार्ज रेजिस्टेंस कैसे जोड़ना है? सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ये हो गया वोल्टमीटर। इसका टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G है ना? अब हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ने के बाद क्या इफेक्ट हुआ और ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या जवाब देंगे? Galvanometer can be converted into voltmeter by connecting a large resistance R in series with galvanometer। हम series resistance कब जोड़ते हैं? रेजिस्टेंस सीरीज में कब जोड़ते हैं? करंट बढ़ाना हो तो नहीं,
कंसेप्ट तो यही है, तो बढ़ाना है तो डिक्रीज है। हमें एक्चुअली सीरीज रेजिस्टेंस से क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। जब हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो हम रेजिस्टेंसेस सीरीज में जोड़ते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को हमने एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में इसलिए जोड़ा क्योंकि हमें इस सर्किट का क्या बढ़ाना था, रेजिस्टेंस बढ़ाना था। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ाना था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा करंट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। हमें सर्किट का वोल्टेज मेजर करना है, जो वोल्टेज मेजर हो रहा है उसमें से थोड़ा सा वोल्टेज यहीं पे टपक गया तो वो एक्यूरेट बताएगा क्या, तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से करंट ड्रॉप नहीं होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ आईआर भी नहीं आएगा ज़्यादा। करंट ड्रॉप कम रहेगा तो वी भी कम ड्रॉप होगा ना, यानी इसकी एक्यूरेसी ड्रॉप तो होगा, थोड़ा बहुत होगा प्रैक्टिकली, पर वो इतना नहीं होगा कि हमें जो वोल्टेज जो दिखा रहा है, सपोज दैट 10 वोल्ट दिखा रहा है तो 4 वोल्ट का डिफरेंस हो गया, ऐसा नहीं होगा, वो कम रेंज में होगा। बात समझ रहे? क्यों रेजिस्टेंस बढ़ाया, क्योंकि जो वोल्टेज आने वाला है वो वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट एकदम कम ड्रॉप होगा, करंट कम ड्रॉप होगा तो अपने आप वोल्टेज भी कम ड्रॉप होगा, यानी ये फाइनल वोल्टेज हमें एक्यूरेट दिखाएगा ना। इतना कुछ ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। ध्यान में क्या रखना है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, बाय कनेक्टिंग ए लार्ज रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर कॉइल। अब ये तो गैल्वेनोमीटर हो गया, अब ये वोल्टेज मेजर करेगा। अब ये सर्किट में कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल। क्यों, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर ये सीरीज में जोड़ देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप डिवाइड हो जाएगा, समझे कि नहीं? So how will you connect ammeter into the circuit in series? How will you connect voltmeter into the circuit? Parallel. इसलिए आपने अभी तक जो सर्किट देखे ना, वहाँ पे एमीटर तुम्हें मेन लाइन में दिखाई दिया होगा, पर वोल्टमीटर तुम्हें बीच में टपका हुआ दिखाई दिया होगा। हमने जो अभी तक सर्किट देखे हैं, वोल्टमीटर हमेशा यहाँ पे तुम्हें दिखाई दिया होगा क्योंकि ये पैरेलल में है, और एमीटर सीरीज में आता है, सेम वायर का है, समझे क्या? एमीटर सीरीज में इसलिए ताकि करंट डिवाइड ना हो, वोल्टमीटर पैरेलल में इसलिए क्योंकि वोल्टेज डिवाइड ना हो। तो वोल्टमीटर कैसे बनेगा, गैल्वेनोमीटर का हाई रेजिस्टेंस हमने सीरीज में जोड़ दिया, बराबर है क्या? अब इस सर्किट में से आज इतना करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है कि नहीं? क्लियर हुआ क्या? अरे समझ रहे हैं, आज इतना करंट फ्लो हो रहा है। अब ये जो बॉक्स है, ये सर्किट में हमने कैसे जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, इसका मतलब है पैरेलल में जोड़ा हुआ। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, इसमें से Ig इतना करंट फ्लो हो रहा है ऐसा हम मान लेते हैं, लेट Ig इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो इसमें से भी कितना जाएगा, Ig इतना ही जाएगा, बराबर है कि नहीं? इतना ही करंट जाएगा, समझ रहे हैं? कुछ तकलीफ है? अब यहाँ पे जैसे हमने एमीटर में देखा था, एमीटर में हमने क्या देखा था कि हाउ विल यू व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस। एमीटर में हमने क्या देखा था, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर कॉइल सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। उसका फार्मूला डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे भी प्रूव करने की जरूरत नहीं, V/Ig माइनस G। जैसे शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, I/Ig या G/N माइनस 1, ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी एमीटर के लिए। गैल्वेनोमीटर के लिए हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू R = V/Ig माइनस G, और V ये वही वोल्टेज है जो वोल्टमीटर मेजर करने वाला है, यानी रेंज ऑफ द वोल्टमीटर V। बात समझ में आई क्या? R = V/Ig माइनस G, क्लियर हुआ? ये किसका फार्मूला है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हाई रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ना है, ये उसकी वैल्यू है। Ig क्या है, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो होने वाला है, ये वोल्टेज है। अब ध्यान रखिए, कुछ तकलीफ नहीं ना? अब ये जो V है, ये V है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है, बराबर है क्या? एक मिनट, इसको अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या? इतनी कुछ तकलीफ है क्या? हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी कर सकते हैं। इस IG से अगर 70 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो तुम्हें ध्यान में आ जाएगी बात, पर हमें फिलहाल प्रूफ में नहीं जाना है। R = V/IG - G। इतना क्लियर हो गया क्या? कि कोई तकलीफ है? अब ये जो V है ना, देखो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, पोटेंशियल डिवाइड होगा कि नहीं? अंदर के साइड को, वहां पे अंदर के साइड को करंट डिवाइड हुआ था, वहां पे यानी कहां पे? यहाँ पे क्या डिवाइड हुआ? इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो, बराबर है कि नहीं? और V1 + V2 कितना होगा? V होगा कि नहीं? तो अगर ये वोल्टमीटर की रेंज, ये जो वोल्टमीटर की रेंज है, ये जो गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज है Vg, उसके कितने टाइम्स लेंगे? वहां पे हमने I = NIG लिया था। वो I क्या था? रेंज ऑफ एमीटर, और IG यानी करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, तो उसका n टाइम्स। तो रेंज ऑफ वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर के रेंज से कितना लेंगे? ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, V NVG/IG - G। देखो ध्यान दो अच्छी तरह से, VG/IG जो है क्या वो G है क्या? क्योंकि VG रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अरे भाई यहाँ पे जो VG है ये करंट और रेजिस्टेंस का ही प्रोडक्ट होगा कि नहीं? तो हमें यहाँ पे ये जो V है हमने NVG लिया, VG/IG जो है ये कैपिटल G, और G कॉमन निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? सिमिलरिटी ध्यान में आ रही क्या? S जो था वो G/n - 1 आया था, वहां पे n की वैल्यू क्या थी? I/IG थी। एमीटर में और वोल्टमीटर में n की वैल्यू क्या है? V/VG है। ये एमीटर की बात है करंट की, ये वोल्टेज की बात है। तो हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर? R = n - 1G। ये R की वैल्यू होनी चाहिए, ये इसको सीरीज में जोड़ना है। अरे समझे क्या? कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं। फिर से एक बार समझो, वोल्टमीटर और एमीटर का कंपैरिजन फिर से करते हैं, अच्छी तरह से फाइनल हो जाना चाहिए टॉपिक। इस पर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक मैंने तुम्हें तब पढ़ाया नहीं था रेगुलर में, क्योंकि MCQ के ऊपर पढ़ाने का ये टॉपिक है। ध्यान दो, एमीटर और वोल्टमीटर दोनों का हम काउंटिंग करेंगे, एमीटर एंड वोल्टमीटर। इधर ध्यान दो, एमीटर एंड क्या? हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर? ओ भाई इधर ध्यान देना, क्या मूझ रहा है? गैल्वेनोमीटर कॉइल एंड शंट रेजिस्टेंस, ये बन गया है एमीटर। और एमीटर सर्किट में हमेशा कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। एमीटर में टोटल करंट I आया, वो IG और IS यानी I - IG में कन्वर्ट हो, डिवाइड हुआ। अब यहाँ पे हमें S की वैल्यू निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला है IG/I - IG × G, या फिर G/n - 1 where n = I/IG। ये हमने लिया है, बराबर है क्या? I क्या है? रेंज ऑफ एमीटर। IG ये गैल्वेनोमीटर की रेंज हो गई करंट मेजर करने की। वोल्टमीटर में वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे? एक लार्ज रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर कॉइल को हम सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये जो बॉक्स है ये सर्किट में कैसे जोड़ेंगे? पैरेलल में जोड़ेंगे। यहाँ पर R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? V/IG - G, पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर ये रेंज ऑफ वोल्टमीटर गैल्वेनोमीटर की रेंज से, गैल्वेनोमीटर में से जो वोल्टेज जाने वाला है उससे n टाइम्स होगा, तो R = NVG/IG - G। ये VG/IG यानी G है, सो R = n - 1G। क्लियर हुआ क्या? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर SG/S+G, वेरी इंपॉर्टेंट, SG/S+G। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो R इक्विवेलेंट = G + R है।
अच्छा वोल्ट मीटर वही होगा जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। अच्छा वोल्ट मीटर वो होगा जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो आइडियल वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप, ये खुद वोल्टेज यूज ही नहीं करेगा, ये सर्किट का वोल्टेज एज इट इज दिखाएगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। बस समझ रहे क्या? आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना? इंफिनिटी। तो वोल्ट मीटर कौन सा अच्छा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। एमीटर कौन सा अच्छा? जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम है। हमने पैरेलल में इसलिए जोड़ा ताकि हमें रेजिस्टेंस कम करना है। कितना कम हो सकता है? वो 0 हो सकता है। तो आइडियल एमीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। आइडियल वोल्ट मीटर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। बात समझ में आई? क्लियर हुआ?